And today we will read about the chapter Water, a Wonderful Liquid. As we know that water is very precious and we must keep it clean. So we should save it also. Now we will look over this. Water makes life possible. It is one of the basic constituents of all living beings. Around 70% of our body is made up of water. So, with you should save water because without water life is not possible. Now next, there are the us can be classified into three categories. That first one is solid, second liquid, and the third is gases. Solid means the substances just like chair, table, these are the solid substances. The liquid, milk, juices, these are the liquid examples. And the gases, carbon dioxide, oxygen, these are the in the forms of gases. Now, substances like water, oil, petrol, kerosene, milk and spirit are liquids. Water is most commonly used liquid. Now, there are the two properties of water. First one is some materials are soluble and some are not soluble in water. And the next is some materials sink and some materials does not sink in the water. That means they float in the water. For example, first we will go through materials that are soluble. Soluble means जो कि पानी में घुल जाता है. जो भी सब्सटेंस जस्ट लाइक आप चीनी लेंगे, नमक लेंगे या दूध लेंगे, ये सारी चीज़ों को जब आप पानी में डालेंगे तो वो उसके अंदर सॉल्युबल है. पर जब आप ऑयल हो या वैक्स हो, ये कोई भी इनमें से कोई भी सब्सटेंस अगर आप पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो डिसॉल्व नहीं होती है. उसी तरह कुछ सब्सटेंसेस जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं और कुछ उसके अंदर डूब जाते हैं. जस्ट लाइक आयरन नेल, ये क्या होता है, पानी में डूब जाता है जब आप पानी में डालते हैं. पर आप पानी में जब लकड़ी डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरता है. नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट दीज मटेरियल्स आर soluble in water. Some substances just like milk, washing soda, common salt, sugar and potassium permanganate, these are the substances that are soluble in water. You can go through many substances that are soluble in water. This means how can you prove that these substances are soluble in water? आप कैसे बोल सकते हो कि ये सारी चीज़ें पानी में घुल जाती है, soluble है पानी के अंदर? उसके लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी जिससे कि आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें पानी में soluble होती है. उसके लिए आप सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको आप पानी से आधा भर देंगे, फिर उसके अंदर आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे. फिर चीनी डालने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएंगे. उसके बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर चीनी नहीं दिख रही है, पर जब आप उस पानी को टेस्ट करेंगे वो टेस्ट में मीठा हो जाएगा. इससे क्या पता चलता है कि चीनी पानी में घुल चुकी है और वो डिसअपीयर हो चुकी है. इससे हमें पता चलता है कि पानी में बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं. तो जस्ट यू कैन गो थ्रू द डायग्राम दैट इज गिवन ऑन योर. फर्स्ट यू हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब, उसको आपने आधा पानी से भर दिया है. उसके बाद उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली है. उसके बाद आपने उस टेस्ट ट्यूब को शेक किया है और पिक्चर नंबर बी में बता रहा है कि वहाँ शुगर डिसॉल्व हो चुका है पानी में. इससे आपको पता चलता है कि सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर. And which are the substances? Just like milk, washing soda, common salt. These are the substances. These are the substances that are soluble in water. You can do this experiment at your home also. आप घर में ग्लास में पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक या चीनी डालिए. उसके बाद आप उसको अच्छे से मिलाइए. मिलाने के बाद क्या होगा कि आपको वहाँ चीनी या नमक नज़र नहीं आएगा, पर जब आप पानी टेस्ट करोगे तो वो मीठा या नमकीन हो जाएगा. इससे आपको पता चलेगा
जो सब्सटेंस चीनी या शुगर था वो पानी में घुल चुका है। अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे जो कि चीज नहीं घुलती है, दैट इज insoluble in water. Substances insoluble in water are sand, wax, glass, oil and kerosene. These are the substances that can't be dissolved in water. We have to do an activity that shows that substance is insoluble in water. Just like the previous, you have to do again. In this experiment, you have to take one test tube and you have to fill it with water, and you have to add a spoon of sand, and after that you have to shake the test tube well. We find that the sand has settled down at the bottom of the test tube. This shows that the sand does not dissolve in water. In the figure also you can see that you have taken a test tube, you have filled it with water. After that you are adding sand to it. After shaking it, let it stand for some time, and after that you will see that the sand has settled down at the bottom. आप घर में भी एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच या तो आप सैंड डालिए या तो ऑयल डालिए। उसके बाद आप उसको चम्मच से हिलाइए। सैंड थोड़ी देर बाद रखने के बाद आप देखेंगे कि वो सैंड आपके ग्लास में नीचे बैठ गया है। इससे क्या पता चलता है कि वो इनसॉल्युबल, वो पानी में घुल नहीं सकता है। उसी तरह तेल भी अगर आप उस ग्लास में डालते हैं तो वो तेल भी पानी में नहीं घुलता है। तो इससे आपको पता चलता है कुछ चीज़ें पानी के अंदर नहीं घुलती हैं। तो हमने यहाँ 2 चीज़ें पढ़ी। पहली थी कि कुछ सब्सटेंस जो पानी में घुल जाती है, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कुछ चीज़ें जो पानी में नहीं घुलती हैं। अब हम तीसरी चीज़ पढ़ेंगे, वो है कुछ चीज़ें जो पानी से हल्की होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? Substances that are lighter than water, that is wood, plastic, ice, oil and kerosene. ये सारी चीज़ें क्या हैं? पानी से हल्की होती हैं। अगर आप इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये पानी के ऊपर तैरेंगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है? ये सारी चीज़ें हल्की होती है, इसकी वजह से ये पानी में तैरती हैं। इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। वैसे ही हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि हम एक बीकर लेंगे। बीकर को हम 2/3 पानी से भर देंगे और उसके बाद उसमें हम एक वुड का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, और हम उसको डालने के बाद देखते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरता है, ना कि डूब जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वुड लाइटर है वाटर से। तो ये भी एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखो। आप एक मग ले लो, उसको पानी आधे मग को भर दो, उसमें एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाल के देखो, वो लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर होगा। तो इससे आपको खुद में समझ में आएगा कि वो सब्सटेंस लाइटर है वाटर से। नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट मेटल्स दैट सिंक इन वाटर। व्हाई दे यूज टू सिंक? क्योंकि वो पानी से भारी होते हैं। Just like iron, copper, aluminium, stone and chalk, these substances are heavier than water. Now you can do one activity again that shows the substance is heavier than water. You will again take a beaker and fill about 2/3 of it with water. Drop an iron nail in it. The iron nail sinks in water and settles down at the bottom of the beaker. This shows that nail is heavier than water. Now come to the diagram that is given. You are taking a beaker and you filled it with 2/3 of water. After filling it, you will put a nail there. It will sink in that beaker. This shows that the nail is heavier. The substance is heavier than the water. ये भी आप घर पे कर कर देखो। आप नेल की जगह आप एक मैग्नेट ले लो या आप एक स्पून ले लो, कोई भी एक चीज़ लो जिसको कि आप पानी के अंदर डालोगे, और जब वो पानी से भारी होगा तो वो पानी में डूब जाएगा।
तो हमने यहाँ पर 4 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ सीखी कि कुछ चीज़ें कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि जो लाइटर होते हैं। और चौथी चीज़ हमने सीखी जो कि हेवियर होते हैं। अब हम एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखेंगे जो कि आपका पानी, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। Here is an interesting fact that you will read about, that the gases oxygen and carbon dioxide that is dissolved in water. अब आप सोच रहे होंगे कि आप पानी में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बिल्कुल होता है। जिस तरह आपने अगर मछलियों को देखा होगा वो पानी में कैसे जिंदा रहती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर होता है। इसकी वजह से वो वहां पर जिंदा होती है। उसी तरह आपने कभी मम्मा ने कभी पार्टी की होगी घर पर, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाए होंगे। आपने कभी उसको शेक कर कर खोला होगा तो अचानक से आप देखते होंगे कि बहुत सारे बबल्स के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स बाहर को आ जाती है। आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है? तो अब मैं आपको बताती हूँ ये क्यों होता है। What happens when we open a bottle of soda water? When we open a bottle of soda water, we see that the dissolved carbon dioxide is escaping out rapidly in the forms of bubbles. That means जब आपने बॉटल को शेक किया उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था और वो अब क्या हुआ है, बबल्स के रूप में आपकी बॉटल से बाहर आने लगा है। Now we will read about the 4 properties of liquid. That first one is has no fixed shape. It takes the shape of its container, has a fixed volume, and it is not hard. And the fourth, that it flows from a higher level to a lower level. जैसे कि आपने पहले भी बहुत बार पानी को देखा होगा, आपने कभी उसको टच किया है, क्या वो हार्ड होता है? तो नहीं होता है। अगर आपने पानी को नीचे से ऊपर फेंकने की कोशिश की हो तो भी नहीं वो बहता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर आप पानी का कोई भी एक शेप हो, वो कभी भी शेप नहीं होता है उसका अपना, क्योंकि वो किसी भी कंटेनर में आप डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। उसी तरह उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर वो 1 लीटर है वो हमेशा 1 ही लीटर होगा, अगर वो आधा लीटर है तो आधा लीटर होगा, भले आप उसका कंटेनर चेंज क्यों ना करते जाए। नहीं, अब हम प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाते हैं। नाउ here first we will do an experiment. First is you have to take some water in a beaker and mark the level of water in it. Now the water takes the shape of the beaker. This shows that water has taken the shape of the beaker. Now pour the water from the beaker into a glass. अब उसी पानी को बीकर से निकाल कर आप ग्लास में डालेंगे। The water takes the shape of the glass. अब पानी ने किसका शेप ले लिया? एक ग्लास का ले लिया। अब इसी पानी को आप निकाल कर एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क में डालेंगे तो उसी पानी ने एक और शेप चेंज किया जो कि है फ्लैट बॉटम फ्लास्क का। अब the water takes the shape of the flat bottom flask. This shows that the water has no fixed shape of its own. It takes the shape of the container into which it is put. Just for example, घर में आप एक जग में पानी लीजिए, उस जग से पानी को एक ग्लास में डालिए तो उस पानी ने क्या किया? जग वाले पानी ने ग्लास का शेप ले लिया। अब उस ग्लास वाले पानी को आप कप में डालिए, कप का उस पानी ने शेप ले लिया। उसी तरह उस ग्लास कप वाले पानी को आप किसी और जगह डालेंगे तो वो किसी और का शेप ले लेगा। तो दैट शोज दैट इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स container. Now let us pour the water from the flat bottom flask back into the original beaker. We find that the water fills the beaker up to the same mark. So we conclude that water has a fixed volume and this volume does not change even when
the container is changed. So, a liquid has a fixed volume. Next, there are several things that you can measure the liquids. Generally, liquids are measured by their volume. The volume of a liquid can be measured by using various types of measuring vessels. The volume of a liquid is measured in a liters or milliliters. 1 liter is equal to 1000 milliliters. Here are some measuring vessels that you should know. First one is beaker, second one is graduated glass jar, third one is measuring cylinder, and the last is flat bottom flask. Here you will conclude that these are the measuring vessels that you can calculate what the volume liquid has. Thank you.